Hello students, welcome to the video lecture series for the subject economics. Students, topic of discussion for today is investment. Now, before coming to investment, we should understand what do you mean by capital, because capital and investment, they are used interchangeably. Now, capital basically refers to any financial assets or real assets which includes capital, plant, equipments, factories and inventories. Now such which can be inventories can be of finished nature, semi-finished natures, and they have actually any kind of financial value. Now in economics, this was the general language, that general definition. In economics, capital is usually referred to as one of the factors of production which is used for production of goods and services. Now it can be defined as any produced good that can be stocked and used for future production of goods and services. Now comes the concept of investment. Now investment in a case in economics, it refers to a real investment. Real investment का मतलब है कि आपने क्या करा, अपनी नेट अमाउंट कैपिटल को ऐसे ऑप्शंस में लगाया जिससे आपने क्या करा, you have created more income. Now, so it implies basically the creation of new factory buildings, roads, bridges and other forms of productive capital which will directly generate new opportunities in the form of jobs. It will create new it will produce more goods, and hence it will increase production. Now the concept of investment is not only expressed in terms of financial investments, because again क्या हो रहा है, capital already market में float कर रही है. अब उसी को हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स और बॉन्ड्स के फॉर्म में हमने पैसे लगा दिए, यानी यहाँ पे हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर रखा है. तो इसका मतलब हमने कोई कैपिटल स्टॉक नहीं बढ़ाया इकोनॉमी में. इट इज ओनली द मूवमेंट ऑफ दैट ऑलरेडी प्रिवेलिंग कैपिटल इन द इकोनॉमी विच इज देयर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. So like since I have already talked, investment and capital, they are interrelated. Now net investments basically कौन सी investments होती हैं जिनसे हमने क्या कर रहे हैं, हम capital stock को increase कर रहे हैं. और gross net investments कैसे calculate करते हैं, obviously gross investment minus interest will give me my net investments. So like again at a macro level, investment को 3 major categories factors influence करते हैं. पहला, अगर हमने बात की तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वो जो फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं. दूसरा, एक कंज्यूमर बहुत सा सेविंग डिसीजंस लेता है, इस तरह से वो अपना अगैन वो भी इन्वेस्टमेंट पे वो अल्टीमेटली इन्वेस्ट कर रहा है बाय टेकिंग सेविंग डिसीजंस. एंड अगैन जो गुड्स एंड जो सप्लाई करी जा रही है गुड्स की बाय द प्रोड्यूसर्स, ये इन डिसीजंस को भी हम मैक्रो लेवल पर लेते हैं. Now, before coming to the various factors which actually influence investments, now the next topic which we'll be taking up is the types of investment. Now, investments can be divided into 2 categories, induced investment and autonomous investment. Induced का मतलब है कि जहाँ पर इनकम के बढ़ने से आप इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा रहे हो, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का कर्व जो होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, जिसमें इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाए जा रहे हैं. नाउ दिस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, जो कि यहाँ पर ड्रॉ करा है मैंने आपके लिए. नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका ये जो ग्राफ आ रहा है, दिस इज एन अपवर्ड राइजिंग. नाउ अपवर्ड राइजिंग का सेंस क्या हुआ कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, इनकम कहाँ बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है आपकी Y1 से Y2 हो रही है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट भी I से I2 की तरफ बढ़ रही है. दिस इज अ केस ऑफ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वेयर यू आर बीन एनकरेज्ड. नाउ यहाँ पे एनकरेज से सेंस क्या है कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन से आपको दिख रहा है, आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि यस प्रॉफिट मिलेगा, रेवेन्यू फर्दर, इनकम फर्दर जनरेट होगा, तो हम इसको देख के वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस एंड वी आर इंक्रीजिंग अवर इन्वेस्टमेंट्स व्हेन देयर इज पैरेलली इंक्रीज इन इनकम. Okay, so this was induced investment. Now next is autonomous. Autonomous basically government institutions करती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इकोनॉमी में पैसे का क्या मूवमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट ले रही है और उनका मेन पर्पस क्या है, दे डू दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विद द व्यू ऑफ प्रमोटिंग द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी. तो ये इंटेंशन होता है, इसलिए इसका जो कर्व है ना, यू विल फाइंड इट एज अ कर्व विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि इनकम के बढ़ने से भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम बढ़ी Y से Y2, बट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, वो I पर ही एग्जिस्ट करेगा, यानी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ने वाला है. सो इट इज एन हॉरिजॉन्टल लाइन विच इंडिकेट्स दैट विद द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम द इन्वेस्टमेंट रिमेन्स अनइफेक्टेड. इसके में कोई चेंज नहीं होता. ओके, नाउ
after taking up the types of investment, next topic is basically the determinants. Like what are the factors which are actually influencing the investment decision. Now since induced investment की बात करें तो ये endogenous factors पे depend करता है, जैसे कि income level, propensity to consume पे, stock of fixed capital, etc. बट अगर हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सोजेनस फैक्टर्स. Now, since gross investment is in the economy is the sum total of induced and autonomous, so इसका मतलब कि जो determinants हैं वो दोनों ही factors means आपके दोनों फैक्टर्स का मतलब हो गया कि आपके एक्सोजेनस एज वेल एज एंडोजेनस फैक्टर्स दोनों ही मिल करके हमारे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिसाइड करेंगे. लेकिन अभी कीन्स ने बेसिकली दो फैक्टर्स को बोला कि ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है. वन इज MEC. MEC का मतलब होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. मार्जिनल एफिशिएंसी का मतलब ये कि कितना प्रोडक्टिव कैपिटल है. अगर प्रोडक्टिव है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा. अगर प्रोडक्टिव मीन्स वी कंपेयर इट विद द रेट ऑफ रिटर्न. ऑब्वियसली व्हाट रिटर्न आई एम गेटिंग, इफ इट इज मोर देन रेट ऑफ रिटर्न, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन यहाँ पर क्या होगा, एक्सेप्टेबल. नाउ बट इफ इट इज ये देखिए यहाँ पे लिखा एक्सेप्टेबल, बट इफ इट इज इक्वलेंट टू आर तो इसका मतलब ये ब्रेक इवन है, मीन्स नॉन प्रॉफिट. कोई भी प्रॉफिट नहीं है, जितना रिटर्न था उतनी ही हमारी कैपिटल जो है हमको कॉस्ट पड़ रही है. ठीक है. बट इफ MEC इज ग्रेटर लेस देन आर, दिस मीन्स कि आपका रिटर्न रेट ऑफ जो रिटर्न है किसी प्रोस्पेक्ट का, किसी उसका, वो आपका जो है क्या कहते हैं, इफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एनी प्रोजेक्ट प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, द एंटरप्रेन्योर इज बाउंड टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट्स. सो ये तीन फैक्टर्स हैं जिसमें यहाँ पर जो लास्ट केस है यहाँ पे MEC इज लेस देन आर. ठीक है. और पहले के केस में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज मोर देन रेट ऑफ रिटर्न, ऑब्वियसली द इन्वेस्टमेंट